So I'm starting with the doubts question. The first doubt is question number 8. So everyone wrote down a line through A 4, 7 with gradient M. So we are talking about a line which passes through the point A 4, 7 and whose gradient means slope, is equals to M. Meets x-axis at P and y-axis at R. This line meets x-axis at P and y-axis at R. So you have to find out P and R, and then you have the second question. So let us first of all see the first part. Okay, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा सब क्वेश्चंस है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से कि अगर एक लाइन A 4, 7 से पास कर रहा है और उसका स्लोप m है, तो फिर ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? Therefore the required equation is y minus y1 equals to m into x minus x1. So the simplified equation is mx minus y plus 7 minus 4m equals to 0. Now this line meets x-axis and that point is marked with P, and where it meets y-axis that point is marked with R. Now you all know that ये line के ऊपर जहाँ भी वो x-axis को कट कर रहा है वहां पे उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 हो जाएगा, और ये लाइन जहां पे भी y-axis को कट कर रहा है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विल बी 0. आई रिपीट वंस अगेन, ये लाइन जहां पे भी x-axis को कट करेगा, ये तो क्लियर है कि जहां भी वो x-axis को कट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और जहां भी ये लाइन एक y-axis को कट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. यहाँ पे y0, यहाँ पे x0. हम क्या करेंगे? ये लाइन का हमको जानना है कि x-axis पे कहां कट कर रहा है. So let us take the value of y equal to 0 once. If I take the value of y equals to 0, we will get mx minus 0 plus 7 minus 4m equals to 0. That is x equals to 4m minus 7 divided by m. Alright. उसके बाद जब हम लोग x का वैल्यू 0 लेंगे तो फिर मुझे पॉइंट r मिल जाएगा. So let us substitute the value of x equal to 0. 0 into m becomes 0. So the value of y will be 7 minus 4m. So we find that this is the point which is denoted with p, and its coordinate value is 4m minus 7 by m comma 0, and where it meets y-axis this is r and it is 0 comma 7 minus 4m. ठीक है, अब देखो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या है. The line through B 8, 3 with gradient minus 1 by m meets x-axis at Q and y-axis at S. मतलब यहाँ पे दो बात है क्वेश्चन. केस 1 a line through A, and case 2 a line through B. Now what is the coordinate of point B? यहाँ पे B का हम लोग को coordinate value दिया हुआ है, it is 8, 3. What is the slope of this line? Slope of this line is minus 1 by m. Therefore the required equation is y minus y1 equals to m into x minus x1. So we have x plus my minus 3m minus 8 equals to 0. ओके, अब देखो ये लाइन x एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, देखो लिखा हुआ है x एक्सिस पे जहां भी कट कर रहा है दैट पॉइंट इज
दैट पॉइंट इज Q एंड जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा है उसको S से मार्क किया जाएगा. सो व्हेन x इक्वल टू 0, यू नो दैट हम लोग को अगर x एक्सिस के ऊपर अगर जानना है कि लाइन x एक्सिस के ऊपर कहां कट कर रहा है तो वहां पे y 0 होगा, और हमको अगर जानना है जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे x 0 होगा. सो इफ आई पुट x इक्वल टू 0, so we will get the value of y. So what is the value of y? It is 3m plus 8 divided by m. And if I put once y equal to 0, y के जगह 0 लगा दें, तो फिर यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 3m plus 8. Now, what are the names of those points? One is Q and the other is S. One is Q and the other is S. Alright everyone, अब देखो इसके आगे अब क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ n द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p q r s. हो गया p q r s, ये तो निकाल लिया. Obtain expressions for op dot oq. Now can anyone explain me what is the meaning of op dot oq? Anyone? What is the meaning of this line op dot oq? Anyone? Can you explain me ये op dot oq का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन OP निकालेगा एंड OQ निकालेगा एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा. वेरी गुड. हम लोग क्या करेंगे, o का मतलब क्या होता है 0,0. o और p के बीच का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, o और q के बीच का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, और दोनों का जो डिस्टेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई करो. सो इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें कुछ मतलब लॉजिक नहीं है, तो मैं उसको एक बार छोड़ देता हूँ. ठीक है, यहां तक आई थिंक समझ में आ गया. आई थिंक इसके आगे हो जाएगा सब कोई का. ठीक है, इसके आगे क्या करना है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. देखो जैसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फाइंड OP डॉट OQ. सो फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P. O इज 0,0, P बस डिस्टेंस निकाल दो इन टर्म्स ऑफ m ही आएगा आंसर, और दोनों को मल्टीप्लाई करो. उसके बाद पूछा जा रहा है एक और पार्ट, एंड OR डॉट OS, मतलब OR निकालो OR OS और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. क्लियर? सो आई थिंक नंबर 8 का क्लियर हुआ डाउट. एक बार कॉपी कर लो, मैं टाइम दे रहा हूं कॉपी करने का. See, in question number 10, I am 100% sure that find the equations of the lines. इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को. I am sure. डाउट किसमें बता रहे? What is the length of the portion of the line in C intersected between the axes? इस पार्ट में डाउट है. Am I correct? Yes, sir. तो मैं ये वाला पार्ट बता देता हूँ. देख लो. तो मैं थर्ड नंबर लेता हूँ एग्जाम्पल पे. ठीक है, एज एन एग्जाम्पल थर्ड नंबर पार्ट. So you have to form, I will find the equation of a line passing through the point P 3,3 and Q 7,6. ये दो पॉइंट्स है P और Q. हम लोग को लाइन का इक्वेशन निकालना है. तो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन PQ निकालो. इट इज y2 minus y1 by x2 minus x1. Therefore, the required equation is of a line through PQ is given by y minus y1 equals to m x minus x1. So we have 3x minus 4y plus 3 equals to 0. अब ये लाइन देखो, अब ध्यान देना एक बार. क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस AXES एक्सिस. एक्सिस का मतलब क्या होता है, मतलब ये बोला जा रहा है कि लाइन जो है x एक्सिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं, y एक्सिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं. तो हम लोग को यहाँ बोला जा रहा है लेंथ निकालने के लिए यहां से लेकर के यहां तक जो पोर्शन कट हो रहा है इंटरसेप्ट से, मतलब एक्सिस पे कट हो रहा है, मतलब वो पोर्शन का ही सिर्फ लेंथ निकालना है. देखो लिखा हुआ फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन. लाइन का वो पोर्शन का लेंथ निकालो इन थर्ड क्वेश्चन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स. ये जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जहां पे कट कर रहे हैं
उस पोर्शन का लेंथ निकालो लाइन का। तो एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आई मीन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 0 जाएगा। तो ये पॉइंट जाने के लिए लेट अस पुट y इक्वल्स टू 0 वंस, जो अभी हमने किया था। तो जब हम लोग y की जगह 0 लगा देंगे तो यहां से x का वैल्यू -1 आ जाएगा, और जब x 0 पुट करेंगे हम लोग तो फिर y का वैल्यू आ जाएगा 3/4। Okay, so we find that these points are -1, 0 and 0, 3/4। अब हम लोग ये दोनों के बीच का लेंथ निकालना। Therefore, required length equals to square root of, let us apply distance formula. -1 - 0 is -1, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9/16, that is 5/4 यूनिट। ओके, अच्छा क्लियर हुआ? तो एवरीवन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये जो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकाला, ये वाला पार्ट, मतलब लेंथ के पहले मतलब y और x हम लोग 0 0 कंसिडर करके निकाल लिया, फिर हम लोग लेंथ क्यों निकाला वो समझ आने लेकिन लिखा हुआ क्वेश्चन रीड करना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन, मतलब ये जो पोर्शन जो है इस इधर से लेके इस पोर्शन का लेंथ, ये लेंथ क्या है ये निकालना है, एक क्वेश्चन पूछा। ओके, तो समझ गया। और नाउ एवरीवन सी क्वेश्चन नंबर 11। So in question number 11, you have a triangle ABC whose vertices are A 10,4, B -4,9 and C -2, all right? Now the first question is what is the equation of side AB? मैं चारों बता ही देता हूँ, ठीक है, देखना है। पहला क्वेश्चन है what is the equation of side AB? तो मतलब पहला वाला पार्ट में हम लोग को AB का इक्वेशन निकालना है। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए, तो दो चीज क्या है? अगर तुम एकदम ये बेसिक फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करो, so we can solve all the questions by using this basic formula, every question। तो अगर ध्यान से नोट करो तो ये फॉर्मूला में हम लोग को m दैट इज स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए लाइन पे। सो लेट अस फाइंड आउट स्लोप ऑफ AB। इट इज y2 - y1 by x2 - x1। All right, therefore the equation of side AB is given by y minus y1, you can take x1 y1 as this or x1 y1 is the other point। now that is, this is your choice, okay? तुम ये x1 y1 तुम ये पॉइंट लो या ये पॉइंट, बस इतना याद रखना है कि x1 y1 क्या है बताओ तो, इट इज एनी वन पॉइंट लाइन ऑन द लाइन, बस इतना मुझे होते हैं। so it is y minus y1 equals to m x minus x1। So we have 5x plus 14y minus 106 equal to 0। ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है। अब देखना इसके अंदर सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए, मतलब हम लोग को मीडियन थ्रू ए निकालना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन थ्रू ए? ए का थ्रू मीडियन मतलब ये हुआ कि ए से एक लाइन, मतलब वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ करो जो उसकी ऑपोजिट साइड पे ये ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, मिड पॉइंट से पास करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन थ्रू ए? मीडियन थ्रू ए का मतलब हो गया, मतलब हम एक लाइन के बारे में बात कर रहे हैं जो वर्टेक्स ए से पास हो रहा है और एक और पॉइंट से पास हो रहा है, जो हमको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। वो पॉइंट के अलावा किसी और से पास होगा तो मीडियन नहीं कहलाएगा। वर्टेक्स ए से तो पास होगा ही, थ्रू ए बोला है तो मीडियन थ्रू ए,
और उसके ऑपोजिट वाला साइड जो है उसके मिड पॉइंट से पास होगा, तब जाके इसको बोलते हैं मीडियन, मतलब मिड पॉइंट, वो वर्टेक्स के ऑपोजिट वाला मिड पॉइंट, साइड का मिड पॉइंट से वो पास करेगा। क्लियर? अब एक बात बताओ, बी पता है हम लोग को, सी पता है, तो बताओ कि इसका मिड पॉइंट मतलब बीसी का जो मिड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? बीसी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? यू नो दैट किसी भी दो पॉइंट्स के मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ऑलराइट? -2 -4 divided by 2 is -3, -1 plus 9 divided by 2 is 4, ए पता ही हम लोग को। अब हम लोग को मीडियन निकालना है थ्रू ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं m, ठीक है? therefore स्लोप ऑफ am निकाल लो पहले, आंसर इज 0। therefore equation of median through a is given by y minus y1 equals to m into, so the answer is y minus 4 equals to 0, ठीक है? ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखना एक बार, द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू बी। इफ यू कैन कॉपी फर्स्ट so that I can move forward, I'm giving you time to copy first. Now see the third part, the equation of altitude through b, not median. The third part is equation of altitude through b. So altitude का मतलब क्या होता है देखना एक बार ध्यान से नोट करना, altitude through b, a b c। देखो altitude through a, altitude through सॉरी मीडियन थ्रू ए, ऐसा नहीं कुछ भी बोलेगा तो थ्रू मतलब उस पॉइंट से तो जरूर पास करेगा। ऑल्टीट्यूड थ्रू ए मतलब सॉरी ऑल्टीट्यूड थ्रू बी मतलब बी से तो जरूर पास करेगा वो लाइन, लेकिन ऑल्टीट्यूड है तो उसके ऑपोजिट साइड पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। चीज को थोड़ा डिफरेंस को समझना तुम लोग। अगर बोलेगा ऑल्टीट्यूड थ्रू बी तो फिर बी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ऑपोजिट साइड पे से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया तो बात? ऑल्टीट्यूड थ्रू बी मतलब बी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो उसके ऑपोजिट वाले साइड से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और अगर बोला जाएगा बी से मीडियन ड्रॉ करो तो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट को जॉइन करेंगे। तो ये यही डिफरेंस है बस, ठीक है? तो एक बात बताओ तुम मुझे, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है बताओ? यस, इफ टू लाइंस, यस m1 into m2 equals m1, मतलब दोनों लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो एक बात बताओ, अगर ये लाइन का स्लोप 3 है तो फिर ये लाइन का स्लोप क्या होगा? -1/3 -1/3 हो जाएगा। ये लाइन का स्लोप अगर -2/3 होगा तो फिर ये लाइन का स्लोप क्या होगा? 3/2। 3/2, ठीक है? मतलब हम लोग यहाँ पे ये लाइन जिसका मुझे इक्वेशन निकालना, जो मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया, उसका मुझे स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, जिससे वो पास कर रहा है वो पॉइंट तो दिख रहा है, लेकिन बाकी पॉइंट से हमको कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज बाकी पॉइंट नहीं, बाकी हम स्लोप चाहिए हम लोग को, ठीक है? स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम AC का स्लोप निकालेंगे पहले, ठीक है? सो लेट अस फाइंड आउट स्लोप ऑफ AC। Slope of AC, it is y2 minus y1, so it is 5/12. So if the slope of AC is 5/12, what is the slope of altitude through B? Tell me. -12/5. Yes. -12/5. Therefore the required equation of altitude through B is given by y minus b से, तो b मतलब ये है, it's y minus y1 equals to m into x minus x1. I hope it is clear. You all can cross multiply and simplify this, right? अब हम एक काम करते हैं, फोर्थ वाला पार्ट बता देते हैं, ठीक है? तो फोर्थ वाला पार्ट को देखना ध्यान से। फोर्थ वाला पार्ट में लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AB।
So let's take the same triangle, but I'm marking A and B here. Okay, see here. यहाँ पे बोला जा रहा है what is the perpendicular bisector of AB. मतलब AB का perpendicular bisector, देखो दो चीजें, perpendicular bisector मतलब मुझे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है और इससे परपेंडिकुलर भी है। तो AB का बाइसेक्ट करने का मतलब इसके मिड पॉइंट से पास करेगा और इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये समझ में आया तो बात? Did you get my point everyone? मतलब हमको परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, मतलब AB को बाइसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, मतलब मिड पॉइंट से पास कर रहा है और ये परपेंडिकुलर है AB से। समझ में आया तो बात? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट जानने के लिए हम AB का पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। लेट अस मार्क द मिड पॉइंट ऑफ AB विद P। AB का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? P, और वो क्या होगा? x1 plus x2 divided by 2, that is 3, y1 plus y2 divided by 2, that is 13 by 2। और उसके बाद ऑल्टीट्यूड का, अब मुझे इसका स्लोप चाहिए तो उसके लिए AB का स्लोप निकालो। So slope of altitude, slope of perpendicular bisector of AB equals to 14 by 5. Therefore, the required equation is y minus y1 equals to m x minus x1. You just cross multiply and simplify, you get the answer. So I hope it's clear to everyone. ये सारा डाउट्स था 16B का मैंने सारा क्लियर कर दिया। कॉपी कर लो पहले, और एक चीज बचा हुआ है 12, यू कैन ट्राई नाउ एटलीस्ट। ओके, और जरूरत तो नहीं है करने का, बट ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 16C। So everyone note down, we are starting now exercise 16C, and in 16C you have one formula, जो यहाँ पे formula अप्लाई होगा मैं एक बार पहले इसको ब्रीफ कर देता हूँ। Now this particular form is called intercept form of a line. Now what do you mean by intercept form? If suppose you know the x-intercept and y-intercept of a line, अगर एक लाइन का हम लोग को x-intercept, देखो ये वर्ड इंटरसेप्ट क्या चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग? जहां पे लाइन एक्सिस पे कट करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पॉइंट को ही इंटरसेप्ट हम बोलते हैं, बाकी को नहीं। ठीक है, तो ये लाइन जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग एक्स इंटरसेप्ट, जिसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करेंगे। और ये वाला जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे जहां कट कर रहे हैं, इसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसको हम लोग b से डिनोट करेंगे। और अगर हम किसी भी लाइन का मुझे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दो चीज पता है, तो डायरेक्ट उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 1। बट अगेन once again note down everyone that this formula has been derived from the basic formula which I am keep on repeating every time कि ये सबसे important formula है। वो कौन सा formula? It is y minus y1 equals to m into x minus x1। Now this is the basic formula, इसी को यूज करके हम लोग हर एक चीज करते हैं। Suppose if an exam, जैसे मान लो हम लोग एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। सपोज मान लो हम लोग को एक लाइन का x इंटरसेप्ट पता है 3, ठीक है, और y इंटरसेप्ट पता है 2, और मान लो ये फॉर्मूला हम भूल गए। एक बार मान लेते हैं कि हमको पता है, तो पता है तो बताओ तो तुम लोग a का वैल्यू क्या है? टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? टेल मी। 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 2। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, x by a plus y by b equals to 1, and then take LCM and cross multiply। ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन सपोज अगर भूल गए तो क्या होगा? ध्यान दें, हम लोग एक पॉइंट, ये पॉइंट को ले सकते हैं हम लोग 3,0। जस्ट नोट डाउन, ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है बताओ? तो x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पॉइंट है लाइन के ऊपर 3,0? और बताओ तो ये पॉइंट क्या है? चलिए 0, y।
I mean, what is y? 0,2. ये 0,2. हम ये बोल सकते हैं कि अगर x इंटरसेप्ट 3 है तो लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, एक है 3,0 एंड दूसरा पॉइंट है 0,2. ऑलराइट, अब हम ये लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं. तो क्या होगा स्लोप? y2 minus y1 by x2 minus x1. ठीक है, अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं. Therefore the required equation is y minus y1 equals to m into x minus x1. Let's cross multiply. So we have 2x plus 3y minus x equal to 0. All right everyone? देखो सेम आंसर है. तो ठीक वैसे हम ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं. देखो कैसे? अगर मान लो x इंटरसेप्ट a है तो बताओ तो पॉइंट क्या है? ये कौन सा पॉइंट है? ये x इंटरसेप्ट मतलब ये 2a यूनिट से कट कर रहे हैं यूनिट पे, तो ये पॉइंट कौन सा होगा बताओ तो? a, 0,0. a,0 एंड 0,b. स्लोप निकाल देते हैं हम लोग. दैट इज माइनस b बाई a और इक्वेशन निकाल देते हैं. is y minus y1 equals to m into x minus x1. Now after this we have to express in this form. Okay, तो क्या करेंगे? इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x और y को लेफ्ट में रखना, बाकी को राइट में. अब एक बात बताओ, ये राइट साइड में यहाँ पे 1 बनाने के लिए, इसके जैसा बनाने के लिए बताओ तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? एनीवन? ab से डिवाइड करेगा. वेरी सिंपल, वेरी गुड. और हम अब ab से डिवाइड कर देंगे. ab से अगर हम डिवाइड कर दें, इसको इससे स्प्लिट कर दो. b भी कैंसिल हो गया तो ये हो गया x by a कैंसिल हो गया, ये हो गया y by b equals to this is the answer. I hope it is very clear to you all कि कैसे ये फॉर्मूला आया है. एंड द मेन थिंग इज दिस फॉर्मूला. सब फॉर्मूला के पीछे यही फॉर्मूला. ओके, सो यू कैन कॉपी डाउन दिस. मैंने पहले एक फॉर्मूला बताया ये कि ये फॉर्मूला के बारे में हम लोग ये एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं. एक एग्जांपल फॉर्मूला को यूज करके बताया, बिना फॉर्मूला को यूज करके भी बताया, और इस फॉर्मूले प्रूव किया. तो एक बार कॉपी करना टाइम देना. Now everyone note down 16C का मैं अभी स्टार्ट करा रहा हूँ. देखना एक बार. We will start 16C and the questions you all have to do right now is number 1 का 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, then question number 4, then number 6, 8, 11. ये सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग कर रहे हैं. तो एक बार सबको स्टार्ट करो. चलो स्टार्ट करो. तुमको पता है कि ये और ये तो जरूर हो जाएगा. स्टार्ट करेंगे. So everyone note down question number 3. 1 का 1 सभी से हो गया बिकॉज आगे फॉर्मूला है ये. और क्वेश्चन नंबर 3 देखना एक बार. See, find the equation of the line which makes equal intercepts on the axis and passes through the point 2,3. So everyone note down. मैंने बताया था तुम लोगों को बहुत पहले भी, equal intercept on the axis का मतलब क्या होता है देखना है. Listen, याद होगा मैंने एक जगह बता दिया था कि स्लोप एक बार 1 ले लेना, एक बार -1, बट क्यों मैंने नहीं बताया. अब मैं एक बार बता रहा हूं कि क्यों हम लोग स्लोप एक बार 1 और एक बार -1 लेंगे. एवरीवन हैव अ लुक. सो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है, पहले हम एक काम करते हैं, इसको k पहले मार्क कर लेंगे. इक्वल इंटरसेप्ट में लाइन ऐसा भी हो सकता है, लाइन ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है. अब देखो एक बार, अगर मान लो लाइन ये होगा तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? 135 डिग्री. चेक कर सकते तुम लोग. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो एक बात बताओ, ये पॉइंट क्या है?
k comma 0, ये पॉइंट क्या है 0 comma k. So what will be the slope? y2 minus y1 by x2 minus x1. So just check once, the slope will be -1. एक बार निकाल के देख लो, स्लोप -1 होगा. एक बार इसका स्लोप निकाल के देखते हैं. -k, 0, 0, k. 0 minus k minus k minus 0. सॉल्व कर लो 1 है. Because इसका angle of inclination 45 degree. So we will find that ये जो चार इक्वेशन जो दिख रहे हैं, इस चार इक्वेशंस में या तो स्लोप 1 होगा या -1 होगा. इसका स्लोप क्या होगा? बताओ तो इसका स्लोप क्या होगा? ये -1 होगा. इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. सो वी आर फाइंडिंग दैट ये जो चार फॉर्म्स है जिसका इक्वल इंटरसेक्ट होता है, वो या तो एक का स्लोप 1 होगा या एक -1 होगा. और ऐसा दो ही लाइन होता है जो एक पॉइंट से पास करेगा. देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स इक्वल इंटरसेक्ट ऑफ द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3. सो अगर वो पॉइंट 2, 3 से पास कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कितना लाइंस हो सकता है बताओ तो, जो 2, 3 से पास करेगा और इक्वल इंटरसेक्ट होगा उसका. एक तुम्हारा लाइन हो सकता है जिसका स्लोप 1 होगा और एक लाइन हो सकता है जिसका स्लोप क्या होगा? -1 होगा. चार लाइंस तो उससे नहीं ना पास करेगा, क्योंकि एक लाइन होगा जो तुम्हारे थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ऐसा कितना लाइंस हो सकता है बताओ तो? दो ही ऐसा लाइन हो सकता है. सो दैट्स व्हाई व्हाट यू विल डू, once take slope equals to 1 और एक बार -1 और दो ऐसा इक्वेशन निकालो. बट इस सम में हम लोग को वो फॉर्मूला का जरूरत नहीं है. कौन सा फॉर्मूला का? x by a plus y by b equals to 1. इसका कोई जरूरत नहीं. तुम लोग क्या कर सकते हो नंबर 3 में? केस 1 स्लोप इक्वल्स टू 1 ले लेना और केस 2 स्लोप इक्वल्स टू -1 ले लेना. So the equation will be y minus y1 equals to m into x minus x1. Okay, and this one will be y minus y1 equals to m into x minus x1. So you will have two such lines. Okay, is this clear everyone? ऐसा दो लाइंस होगा, देख लो. अब एक बार ट्राई कर लो. The next question. So everyone note down question number 6 now. See, what is the question? Just note down. Let me explain the question first. A straight line through 2, 3 and the portion of the line intersected with the axis is bisected at this point. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ध्यान से अगर क्वेश्चन समझ गए तो कुछ नहीं है क्वेश्चन. देखो. So we have to find out the equation of a line. Find out the equation of a line. हम लोग एक लाइन का इक्वेशन निकालें जिसका पोर्शन इंटरसेक्टेड जो है. देखो ये टर्म का मतलब क्या होता है? पोर्शन इंटरसेक्टेड मतलब ये लाइन का यहां से लेके यहां तक इंटरसेक्टेड पार्ट है. किससे इंटरसेक्टेड पार्ट है? एक्स एक्सिस से. समझ में आया तो बात? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से. तो इस पॉइंट को अगर मान लो ए ले लेते हैं, आई मीन ये अगर मान लो ए है तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा? a, 0. और अगर ये है बी तो क्या हो जाएगा पॉइंट? 0, b हो जाएगा. ऑलराइट, इसका नाम ए देते और इसका नाम बी. ऑलराइट एवरीवन, अब देखो ध्यान से. ये जो पोर्शन इंटरसेक्टेड इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट, लेट्स नेम दिस पॉइंट एज p 2, 3. अच्छा, ये टर्म बाइसेक्टेड का मतलब समझ में आता है? तो बाइसेक्टेड का मतलब क्या होता है बताओ तो? क्या होता है? Middle term. मिडिल टर्म. करेक्ट. मतलब अब देखो ध्यान से, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं. ये लाइन का इक्वेशन चाहिए. ये लाइन का जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, इधर इतना पोर्शन जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट से. ये पॉइंट इस इतना पोर्शन को बाइसेक्ट कर रहा है. तो ध्यान देना, लेट ए एंड बी be the intercept made by line in the coordinate axis. Okay,
अब देखो a और b दो पॉइंट है, a एक पॉइंट है a, 0, b दूसरा पॉइंट है 0, b, p एक पॉइंट है 2, 3, ये मिड पॉइंट है। तो कैन यू डिटरमाइन, टेल मी हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b, एनीवन बताओ तो। 0 by 2 equals to 2. वेरी गुड, मतलब मिड पॉइंट, सो ओके, नाउ वी नो दैट मिड पॉइंट ऑफ AB is equals to what? P2, 3. AB का मिड पॉइंट निकाल दो, that is A plus 0 by 2, 0 plus B by 2. अब इसको कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर मतलब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से कंपेयर करना है। So by comparing we get A plus 0 by 2 equals to 2, that is A equals to 4, and B plus 0 by 2 equals to 3, that is B equals to 6. A और B दोनों मिल गया, so what will be the required equation? Therefore the required equation is x by A plus y by B equals to 1. LCM लेके solve कर देना, आंसर आ जाएगा। Is this clear everyone? Yes. So everyone see question number 8. Okay, just note down here everyone. Find the equation of the straight line which passes through the point 3, minus 2 and cuts off positive intercepts on the axis and x-axis and y-axis, which are in the ratio 4:3. So can anyone explain me this line? Intercept ये 4:3 क्या है, तो बता सकते हैं anyone? Yes, anyone who can explain? पॉइंट को 0, और 0,3 के ले सकते हैं। मतलब ये क्या है, बस इतना, मतलब ये क्या चीज है बताओ मुझे, just tell me this much only. Means your answer is right, I know that, just let me but once again explain me, ये क्या है बताओ तो। 4:3 क्या डिनोट कर रहा है बताओ तो। रेशियो जिसमें वो 3, -2 वो डिवाइड हो रहा है, मतलब ऐसे बोलो कि ये रेशियो है, जो जैसे मान लो x इंटरसेप्ट सपोज 12 है, y इंटरसेप्ट मान लो 16 है, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का रेशियो है, जैसे 12:16 हुआ, तो वैसे ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का रेशियो है। लेकिन ये एग्जैक्ट क्या है वैल्यू, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि x इंटरसेप्ट इज 4, y इंटरसेप्ट इज 3, नो। हम क्या लेंगे, लेट x इंटरसेप्ट बी 4k and y intercept be 3k. Is this clear? Let x intercept be 4k and y intercept be 3k. Is this clear everyone? Because intercept का जो ratio है, x intercept is to y intercept का जो ratio है वो 4:3 है. So let x intercept be 4k and y intercept be 3k. Let 4k and 3k be the x intercept and y intercept. Okay, therefore the required equation will be x by a plus y by b equals to 1. All right everyone, x by a plus y by b equals to 1. Let us take LCM. अब देखो एक बार, यहाँ पे हम लोग को k का वैल्यू नहीं पता है। In order to determine the value of k, tell me ये लाइन किस पॉइंट से पास करे बताओ तो। ये लाइन 3, -2 से पास करे। So since 3, -2 is a point on the line, so at the place of x put 3, at the place of y put -2 and solve this. So what is the value of k? It is 1/12. अब ये k का वैल्यू 1/12 पुट कर दो, therefore
सो अगर हम k की जगह 1/12 लगाएंगे तो 12 into 1/12 क्या हो जाएगा 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. This is clear everyone? This is the required equation. I hope you all have understood. यहाँ पे हमको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का रेशियो दिया था, तो हम लोगों ने 4k और 3k ले लिए, बट यहाँ पे हम लोग को k का वैल्यू नहीं पता, एंड वी नो दैट ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा था, x की जगह 3 और y की जगह -2 पुट कर, सॉल्व करके k का वैल्यू